Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are well and you all are relaxed also because the whole week you have done hard work due to your unit test 1 exam. Okay, student. Now, see, student, take out page number 72. We are studying. I am teaching you chapter number 12 and today date is 11/8/2020 and please take out one rough copy. Take out one rough copy so that when you are watching the videos, the things which you are unable to understand, you can note down that things in your rough copy so that you can ask that things in me if there is any confusion in your online doubt session classes. Okay, student. Now see, student, we have discussed that the weather changes, how the changes take place in weather due to sun. Okay, what is the reason? Weather, how weather changes. So this thing I have already little discussion on this topic I have already done with you when I am teaching you chapter number 10, our earth. So in that chapter, when we are talking about the earth and especially the revolution of the earth has two types of movements. One is a rotation, that the earth move on its own axis, and other movement of the earth is known as revolution. It means the earth is taking a round of the sun. The earth is taking round of the sun. So due to, at that time I also explained you that the earth, the orbit or fixed path in which the earth is revolving around the sun, that causes different season. उसी की वजह से different season cause होते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ का सन, व्हेन द अर्थ इज टेकिंग राउंड ऑफ द सन, तो अर्थ के जिस पोर्शन पे बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है, हीट ज्यादा होती है, वहां अक्सर क्लाइमेट टेम्परेचर क्या होता है, बहुत वहां का वेदर हमेशा, जो सीजन क्या हो, जहां वहां वेदर क्या होगा, हमेशा बहुत हॉट हॉट होगा, गर्मी बहुत ज्यादा होगी. जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था ना, जो देश इक्वेटर के आसपास होते हैं, जैसे मैंने इंडोनेशिया की बात की थी, वहां पे तो वहां बहुत गर्मी होती है. तो ऐसे देश जो इक्वेटर लाइन के आसपास होते हैं, वहां गर्मी बहुत होती है, क्योंकि लाइट, सन की लाइट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है. इन दैट वीडियो, इन दैट चैप्टर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो वहां बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, वेदर कैसा होता है, बहुत ही वेदर क्या है, वहां ठंड होती है हमेशा, क्योंकि उन रीजन्स पे सन की जो लाइट है सीधी नहीं जाती है. इज इट क्लियर? तो जो सन लाइट जा रही है उस पोर्शन पे बहुत लेस जाती है. दैट इज द रीजन वहां हमेशा कैसा वेदर रहता है, कोल्ड रहता है, हरदम कैसा वेदर रहता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है. सो हियर व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर एयर, वाटर एंड वेदर, so how weather changes, so sun light, due to the heat of the sun, the weather changes. Is it clear? So after that we discuss what is the sea bridge and land bridge. One time the air is moving from sea to land, and it happens when during the daytime, and when there is no sunlight, it means we are talking about the night time. So at that time what's happened, land bridge moves from land to sea, and that is when, and that is known as land bridge. It means the air is moving from the land to the sea, so that is known as land bridge. So in this we have already discussed what is a sea bridge and what is a land bridge. Now see, student, after that we are discussing the different states of water. That it means we are talking about a solid, liquid and gas.
Is it clear? It means we are talking about the solid, liquid and gas. These are the three states of a water. It means water can change from one state to another. Okay, water can change from one state to another. So, and this process of changing of water from one state to another is a very important. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज होना, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म. सो स्टूडेंट, व्हेन वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड, जब वाटर फ्रीज हो जाता है, इट मींस 0 degree temperature or less than 0 degree temperature, at that time the water change in the form of a ice, and ice is the solid form of the water. Okay, ice is the solid form of the water. Liquid is water. And what is gas? When on heating, जब heat होता है water, on heating water change in the form of a vapor. So it change in the form of a vapor, and this form of water is known as gas form. And how this happens, student? It happens on heating. So on heating, water change into a water vapor. Water change into a water vapor. And that is, and how this happens, student? It happens on हीटिंग. ऐसा कब होता है बेटा? ऐसा तब होता है जब वाटर हीट होता है. सो वेरी गुड एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ सो वी विल डिस्कस व्हाट इज इवापोरेशन. So what is evaporation, student? What is evaporation? The process by which water changes. The process by which water changes into vapor on heating. This word is not given in your book definition on heating, but I have written here just for your understanding. Is it clear? Just for your understanding. On heating, the process by which water changes into vapor on heating is called evaporation. So what is evaporation? I hope you are able to understand. The process by which water changes into vapor on heating is called evaporation. Okay, this process is known as evaporation. Now see student, try to understand what is the process of evaporation. See, water is a natural resource. Water कैसी रिसोर्स है बेटा? ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है. नेचुरल, what are the nature gifts to us? So water is a natural resource whose stocks are not going to completely finished. So when we see evaporation process, it is a continuous process which all the time क्या ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूस होती रहती है, इवापोरेशन. ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 3 में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा. हाउ द वाटर मूविंग फ्रॉम इंटरचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हो रहा है, ये आपने क्लास 2 में तो नहीं, क्लास 3 में व्हाट इज वाटर साइकिल पढ़ा होगा. ओके, सो फॉर वाटर साइकिल दीज टू
process plays a very important role, that is their evaporation, and another one is the condensation. Another one is a condensation. क्योंकि all these things happen due to the light of the sun. ये जो आपकी इवापोरेशन हो रही है, एक इवापोरेशन मीन्स होता ऑन हीटिंग, ठीक है. सो व्हाट द हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन? दैट इज द light of the, that is light of the sun. How? Because when the sunlight क्या है? When the sunlight falls on the surface of the water, so due to the heat of this light, कभी आप लोग ने देखा है हॉट डेज में, आप लोग समर डेज में अगर बाहर खड़े हो तो जैसे लगता है स्किन पूरी जल जाएगी. तो जो सन की रेस होती हैं वो इतनी ज्यादा हीट होती है उसमें, तो हमें फील होने लगता है ना कि बहुत गर्मी लग रही है, लग रहा है स्किन पूरी हमारी जल जाएगी. ऐसी फीलिंग आपको होती है. सो देर इज लॉट ऑफ हीट, ठीक है, बहुत गर्मी हो, देर इज लॉट ऑफ हीट इन द सनलाइट. सो स्टूडेंट, व्हाट्स हैपन व्हेन द सनलाइट falls on the surface of a water, and we know that the boiling point of water, what is boiling point of water? 100 degree Celsius. Okay, so student, when the light of the sun falls on the surface of the water, then what happens? Due to the heat of the sunlight, water evaporates. क्योंकि यहां एक वर्ड मैंने ऐड किया था which is not written in your book, on heating, ठीक है. क्योंकि ये evaporation and condensation, these two process plays a very important role in a water cycle. इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. आ रही है बात समझ में? तो क्या आप लोग इवापोरेशन की प्रोसेस सेल्फ हम ह्यूमन बींग्स करा सकते हैं? वाटर को हीट करने के लिए पूरे दुनिया के अर्थ के जितने पेड़ हैं सबको हमें जलाना पड़ेगा. क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं ऑन हीटिंग. ऑन हीटिंग मतलब अगर आपके गैस है, किचन में गैस है, या वुड है आपके पास, या कोल है, या पेट्रोल है, केरोसिन, इन सबको जलाने से हीट निकलती है ना. बोलो यस और नो. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इतने ज्यादा वाटर को हीट करने के लिए हम इतनी चीजें जलाएंगे? नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? सो जो सन की लाइट है, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, देन व्हाट हैपेंस? ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट, वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर. जो मैंने ऑन हीटिंग की बात की थी ना, ये प्रोसेस क्या है? नेचर में अपने आप ही हो रही है, ठीक है. ये प्रोसेस नेचर में हो रही है अपने आप, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन ही है. क्योंकि सन की ही एनर्जी को ट्रैप करके प्लांट्स भोजन बनाते हैं, ये सुना है ना. तो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी क्या होती है? जैसे हम ही हैं, सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी काम को करने के लिए हमारे बॉडी में भी तो शक्ति होनी चाहिए ना. तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ है वो क्या? आपकी सनलाइट ही है. आप कहते हो कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो ट्रैप किसको करते हैं? सन की लाइट को ही ट्रैप करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. और उसे कन्वर्ट करके फूड फॉर्म में चेंज करते हैं ना. ये फोटोसिंथेसिस में आपको बताया था ना. तो देखो, ये पूरी इवापोरेशन की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सन की लाइट है, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जैसे आपके लिए क्या होगी? रिवर है, लेक है, पाउंड्स हैं, सी हैं, ओशंस हैं. व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल water bodies which are present on the surface of the earth. So अब ये सब चीजों से वाटर, सन की हीट इतने पड़ रही है तो इवापोरेशन होता रहता है. क्या होता रहता है? इवापोरेशन होता रहता है. जैसे मान लो अगर इवापोरेशन नहीं होता
और रेनी सीजन में, मॉनसून सीजन में इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, आप देखते हो व्हेन देयर इज लॉट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, देन मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर। सारी रिवर्स में इतना एक्सेस पानी हो जाता है। आप न्यूज चैनल में आज भी देख रहे होंगे कि कई जगहों पे बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई, इतना पानी हो गया, लोगों के घर डूब गए, पूरे ग्राउंड्स कवर हो गए। ऐसा आप सीन देखते हो ना। लेकिन जब मानसून सीजन खत्म हो जाएगा, रेन खत्म हो जाएगी, बारिश खत्म हो जाएगी, तो फिर आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो ना, वो पानी कहाँ भाग गायब हो जाता है। कभी रेन होती है, आपने ऑब्जर्व किया, आपके ग्राउंड्स आर सबमर्ज्ड इन द वाटर, ग्राउंड पूरे डूब जाते हैं वाटर से। कुछ दिन बाद वो पानी कहाँ गायब हो जाता है। कुछ पानी तो जमीन में चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, और रेस्ट ऑफ वाटर का क्या होता है, डैट इवापोरेट। उसका यही होता है इवापोरेशन, ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट दैट वाटर इवापोरेट्स। अगर इवापोरेशन की प्रोसेस नहीं होती तो आप लोग ने सुना होगा कि ओशंस में इतना पानी है, रिवर्स में, सी में, तो इतना वाटर है, अगर ये वाटर इवापोरेट नहीं होता, गैस फॉर्म में अगर नहीं चेंज होता, तो तब तो आपकी रिवर्स हो गए, ठीक है, आपके सी हैं, ओशन है, इनमें तो हमेशा वाटर ओवरफ्लो करता रहता। ऐसे तो मॉनसून सीजन में ना आती है फ्लड्स, ऐसे तो पूरे ईयर ही फ्लड आती, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वाटर होता। लेकिन हर सीजन में हर सीजन में रिवर वाटर ओवरफ्लो नहीं ना करता है। क्यों? मॉनसून में इसलिए करता है बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज रेन वाटर एक्सेस आ जाता है, इसलिए ओवरफ्लो करता है। अदर सीजन में नहीं ना करता है, क्योंकि ये जो इवापोरेशन है, ड्यू टू दिस, फ्रॉम वेयर इवापोरेशन जो हो रही है, ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन, जो वाटर इवापोरेट हो रहा है, वही वाटर तो ऊपर जाके क्लाउड्स बना रहा है। बिकॉज जो आप लोग देखते हो इन द टॉप, आप बोलते हो स्काई, ब्लू स्काई, बहुत बड़ी स्काई, तो स्काई कहां से बनी? यही आपके वाटर ही ने बनाई है। इज इट क्लियर? सो ये प्रोसेस क्या बेटा, कंटिन्यूअस रहता है। इज इट क्लियर? तो लाइट ऑफ ए सन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो हम लोग ने इवापोरेशन आज पढ़ा, इवापोरेशन, व्हाट इज इवापोरेशन? द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर ऑन हीटिंग की बात कर रहे हैं इवापोरेशन, तो ये हीट कौन कर रहा है? कोई हम लोग किचन की गैस यूज करके नहीं कर रहे हैं, ना वुड जला के। ऑन हीटिंग मीन्स दिस cycle is continued due to the light of a sun, due to the light of a sun। सन की लाइट से वाटर क्या हो रहा है, इवापोरेट हो जा रहा है। आई होप तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा। और एक चीज और देख लेते हैं, विच इज गिवन इन द बुक। सी द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लाइट ऑफ द सन। हीट ऑफ द सन बोल सकते हो या लाइट ऑफ द सन, हीट, ठीक है। हीट ऑफ द सन, जो सन की रेज आती है, उसकी हीट से ये वाटर क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। अब ये जो बेटा वाटर जो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये वाटर वेपर किस में मिक्स हो जाता है, एयर में। क्योंकि जब एयर वाले चैप्टर में आप लोग ने मैम से पढ़ा होगा, तो मैम ने आप लोग को कंफर्म ये बात बताई होगी, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो ये जो वाटर, when the water evaporate, it means the water change in the form of a vapor। वेपर फॉर्म में जब वाटर चेंज होता है तो उसको क्या फॉर्म बोलते हैं, गैस फॉर्म बोलते हैं। किस फॉर्म में बोलते हैं, गैस फॉर्म ऑफ ए वाटर। उसको हम लोग कहते हैं वाटर की गैस फॉर्म है, गैस में चेंज हो गया, ठीक है। अब ये वाटर वेपर, इसका मतलब ये वाटर वेपर अब किस में मिक्स हो जाता है, एयर में। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये वाटर वेपर भी एयर में मिक्स हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारे चारों तरफ, हमारे पूरी सराउंडिंग्स में जो एयर है उसमें वाटर भी है, इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। उसमें क्या है, वाटर भी है। इसका मतलब हम लोग नदियों में पानी देखते हैं, लेकिन वाटर वेपर हमें दिखाई नहीं देता, वी आर अनेबल टू सी ना। सो इन द रिवर आप देखते हो वाटर है, इसका मतलब हवा में भी बहुत सा पानी फ्लोट कर रहा है, उड़ रहा है।
किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। आया? यही बात समझ में? जैसे रिवर्स में आप इतना पानी देख लेते हो, लेकिन जब वो गैस फॉर्म में चेंज होता है तो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब हमारे चारों तरफ एयर में क्या है? वाटर वेपर है, मतलब पानी हवा में भी उड़ रहा है, बट वी आर नॉट फीलिंग। ठीक है, हमें फील तो कर रहे हैं जब कोल्ड एयर चलती है या वार्म एयर चलती है, फील करते हैं, बट वी आर अनएबल टू सी। हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन हम फील करते हैं। ठीक है, सो दैट इज, अब बोलते हैं अमाउंट ऑफ वाटर पेपर प्रेजेंट इन द ईयर। आपने अक्सर न्यूज चैनल में देखते होंगे या मॉर्निंग में क्लास वाइज असेंबलीज जो चलती हैं तो आप लोग देखते होंगे, व्हेन द स्टूडेंट आर सेइंग नाउ द वेदर रिपोर्ट, टेम्परेचर इज 24 डिग्री इन द मॉर्निंग एंड इन द and no, in this manner maximum temperature is minimum temperature is 10 degree and maximum should be 40 degree। एंड ह्यूमिडिटी वर्ड आप लोग ने सुना होगा, ह्यूमिडिटी टुडे ह्यूमिडिटी इज 90%, 80%। कभी कभी बच्चे बोलते हैं 90 अबव एंड 90%। तो ह्यूमिडिटी होती क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, और ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कब होती है? हॉट डेज में। जब गर्मियों के दिन में देखा है, गर्मियों के दिन में आप निकलो तो लगता है एकदम गर्म हवा पूरी बॉडी को लग रही है, जिसको हम लोग लू बोलते हैं। लू बोलते हैं ना गर्म हवा को, वो बॉडी को टच करती है तो बिल्कुल गर्म लगती है, जैसे लगता है कि किसी ने कोई गर्म चीज से स्किन को टच कर दिया है। ऐसा फील होता है ना आपको हॉट डेज में। तो हम कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट आज बहुत ज्यादा गर्मी है। जब सनलाइट, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो सन की जब हीट वाटर पे पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। तो वाटर जब बहुत ज्यादा इवापोरेट होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बताओ एयर में ज्यादा होंगे कि कम होंगे? थिंक अबाउट इट एंड टेल। ओके, वेरी गुड आंसर, ज्यादा होंगे। जब बहुत ज्यादा हीट होगी, बहुत ज्यादा बेटा हीट होगी, बहुत ज्यादा सनलाइट की हीट से जब ज्यादा गर्मी होगी सन की लाइट में, तो क्या होगा? वाटर क्या होगा? बहुत ज्यादा इवापोरेट होगा। इसका मतलब एयर में जो वाटर वेपर की परसेंटेज क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज ह्यूमिडिटी, अब स्टूडेंट अगर आपसे ये वर्ड कोई पूछे कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मींस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। डेफिनेटली हॉट डेज में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है, इवापोरेशन इन नेचर टेक प्लेस ड्यूरिंग द sun's heat on very hot day. Water evaporate faster and it's spread over a large surface or area. कह रहा है, अब देखो इवापोरेशन इन नेचर, नेचर में, ठीक है, तो इवापोरेशन की सबसे ज्यादा जब कब होती है? सबसे ज्यादा इवापोरेशन कब होता है? मैंने आप लोग से अभी जस्ट बताया था, इवापोरेशन सबसे ज्यादा कब होगा? जब कैसे डेज होंगे? हॉट डेज होंगे, वेरी हॉट डेज। क्योंकि जब बहुत हॉट डेज होते हैं तो उस समय सन की हीट बहुत ज्यादा होती है। गर्मियों में आप लोग ने देखा ना, देखो जब विंटर आती है, विंटर में अगर आप थोड़ी देर धूप में खड़े होते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, हमारी बॉडी वार्म हो जाती है, हमें मन करता है कि हम सनलाइट के सामने खड़े हों, तो हमारी बॉडी क्या वार्म हो जाती है ना। लेकिन यही आप सोचो कि समर डेज में आप अपनी बॉडी वार्म करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट होती है समर्स डे में। क्यों? इसलिए समर्स में जब सन की हीट बहुत ज्यादा होगी तो व्हेन द हीट ऑफ द सन इज मोर, इट मींस इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इवापोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इज इट क्लियर? इसीलिए समर के बाद कौन डेज आते हैं? मॉनसून्स आते हैं। बात आई समझ में? जब थोड़ा वाटर साइकिल पढ़ाऊंगा ना
तब वहां से इसको मैं तुम्हें कंपेयर करूंगा ना तो तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हमेशा गर्मियों के बाद मॉनसून सीजन्स आते हैं ना, जून के बाद दिखाता है कि अब बारिश आने वाली है, मॉनसून आने वाले हैं, क्योंकि यही वाटर वेपर जब राइज करके ऊपर जाते हैं तो यही आपके कूल होने के बाद क्लाउड्स बनाते हैं। जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर हो जाएंगे और अब जाके जब ये क्लाउड्स बनाएंगे तो बहुत ज्यादा वाटर ऊपर हो जाएगा जिसको क्लाउड स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो वही रेन की तरह नीचे आके बारिश होने लगती है। ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए समर्स के बाद मॉनसून का मंथ आते हैं, रेनी डेज आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो, अब आई होप इफ नाउ एनीवन आस्क यू व्हाट इज इवापोरेशन, तो अब आप इजिली बता दोगे द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। सेकेंड, who is responsible for evaporation? लाइट ऑफ ए सन। लाइट ऑफ ए सन जो है वही सन रेस की जो हीट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो अब आप बेटा बिना कंफ्यूज के एकदम स्ट्रेट आंसर देना। इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज ह्यूमिडिटी, सो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, amount of water vapor present in the air, that is known as humidity। ठीक है, और हॉट डेज होगा when the climate is very hot, सन की लाइट में बहुत ज्यादा हीट होगी, तो एट दैट टाइम इवापोरेशन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, एट दैट टाइम इवापोरेशन भी बेटा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, सो आज के टुडे एपिसोड में छोटी सी एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं बेटा, व्हाट वी हैव डन इन दिस वीडियो। इन दिस वीडियो, इन द बिगिनिंग वी डिस्कस अबाउट दैट हाउ द वेदर चेंजेस टेक प्लेस। सो वेदर चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू द सन, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ठीक है, सन ही रिस्पॉन्सिबल है। जो जितने भी सीजन्स बनते हैं, गर्मी के सीजन आते हैं, मॉनसून्स आते हैं, ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है, सो ऑल दीज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? द सन हीट और लाइट ऑफ द सन। एक ये डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने इसमें पढ़ा देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की कितनी स्टेट्स हैं? 3, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट दैट इज आइस। आप हमेशा देखोगे पहाड़ों पे बर्फ जमी रहती है, क्योंकि जो माउंटेन्स एरिया होते हैं वहां टेम्परेचर क्या होता है? लेस होता है, वो कोल्ड रीजन होते हैं, बहुत ठंड होती है। और कुछ रीजन्स तो इतने ठंडे होते हैं कि वहां टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। जैसे आप लोग मैक्सिमम अपने पेरेंट्स से बात करोगे, आप लोग आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप लोग के पापा लेह लद्दाख में पोस्टिंग होती है, जम्मू है, कश्मीर है, तो हमारे इंडिया में ऐसे भी रीजन्स हैं, ऐसे भी एरिया हैं जहां इतनी ठंड होती है कि हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, टेम्परेचर माइनस में रहेगा। और जब टेम्परेचर माइनस में भी रहेगा तो क्या होगा? जो भी वाटर है वो ऑल द वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस, ऑल द वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस। तो ठीक है, और लिक्विड रूप में वाटर को आपने हर जगह देखा है, रिवर में, पाउंड में, लेक्स में, सी में, ओशन। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको देखने के लिए दूर जाना पड़ेगा थोड़ा। आप अपने घर के टैप्स नल ऑन करो, उसमें आप डेली वाटर, बिकॉज हमारी दिन की शुरुआती वाटर से होती है, उठते हैं, अपना मुंह धोते हैं, फिर ब्रश करते हैं, ये सब। सो मेनी एक्टिविटीज वी डू विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो अनदर थिंग इज दैट स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखो, when we are talking about the gas form of the solid हो गया, लिक्विड हो गया, गैस फॉर्म है, वही जो है तुम्हारा जब ऑन हीटिंग वो चेंज हो जाएगा वाटर वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में। तो वो फॉर्म क्या है वाटर की? क्योंकि जब वाटर, देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया जाए कम ऑन 2 बकेट वाटर फुल है, बकेट मतलब बाल्टी, ठीक है, एंड वॉक 10 मीटर और 20 मीटर, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वही वाटर जब गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है ना तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। इज इट क्लियर? अब आप सीनियर क्लास में जाओगे तब डिटेल स्टडी करोगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में जब पढ़ोगे
ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लो, जब वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, तो वाटर का वेट क्या हो जाता है, बिल्कुल लाइट हो जाता है, इसीलिए तो गैस फॉर्म में वो उड़ के सारी जगह फैल जाता है समझ में, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक, सो स्टूडेंट, आई होप the process of evaporation, all these things you are able to understand. Even if now any doubt, you can ask in your online doubt session. Thank you student, have a nice day. Okay.